Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon. ma'am. Good afternoon, everyone. So, all are ready for the class? Yes, ma'am. Very good. So, today we'll try to finish this chapter, chapter 7, a visit to Cambridge. Yes, ma'am. So, one more minute, I'll wait for the students, those who have not yet joined. Then I'll start the class. Okay. So, children, if you have any doubt, you can clarify me after I finishes the lesson. Okay. So, you should have some problem to discuss, to be discussed. Yes, बच्चे, please put on your video, everyone. Aman? Yes, बच्चे. Yes, ma'am. Are you listening, everyone? Please put on your video. Good afternoon, बेटा. सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लो बट्टे. Light gone. Light is gone. Oh. Okay, students. So, shall we start the class, beta? Now already we have we are on time now. So, you see in chapter 7, do you remember something about the person, both the persons, those who are disabled? One is Stephen Hawking and another one is your गंगा, है ना? याद है बच्चे? इनके बारे में पढ़ रहे थे, है ना? So today we are going to study their end part. After they met, what happened to them? है ना? उन दोनों मिले. In second, yesterday we came across that Kanga, है ना? Mr. Kanga, who came from since far away to visit Stephen Hawking, है ना? बहुत दूर से उनको मिलने के लिए आए थे. क्यों मिलने के लिए आए थे? What is the purpose behind? Why he wanted to know? Why he wanted to see Stephen Hawking? Maybe he had some intention. Maybe he had some view about him. Maybe he have heard about him, read about him something, or he must be thought that he is a very great person. As you know that he is a very talented man, है ना? And he is a scientist also, isn't it? Am I right? Yes, na? He was a scientist also. So this Kanga, he wanted to know the quality of the Stephen Hawking, what the quality he had, so that many of the people, whenever they used to ask him something, he used to be cheerful, he used to give the answer smilingly. जितने भी अंदर दुख है, कष्ट है, सब कुछ भूल कर वो क्या करते थे? He used to smile and give the answer to the people. ये कभी अपने दुख बाहर नहीं दिखाते थे. So this is a very touching thing. You can say this is very inspiration that you can get from him. In fact, of having so many problems, he had the cheerfulness on his face. Good afternoon, ना? ma'am. Good afternoon, बेटा. तो ये जो है स्टीफन हॉकिंग, ये डिसेबल है. एंड कंगा ऑल्सो, फिरोज कंगा भी. चैप्टर कौन सा है? Chapter 7, beta. Chapter 7, visit to Cambridge. We have reached to the end part. So today we are going to finish. So I am having the revision whatever we have studied yesterday. Then only we can go further, है ना बेटे? तो ये है जो इन दोनों के बुक है? कन्वर्सेशन. हाँ, हनीड्यू है. थैंक तो यू बेटा देख. ओके. तो ये बच्चे देखो इनके दोनों के बीच में कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है. हाउ पीपल दे थिंक अबाउट देम. लोग क्या सोचते हैं? हम भी एक ह्यूमन बीइंग है ना?
So when we think somebody who has no leg, no hands, how that person can manage themselves? कभी आप लोग देखते होंगे बच्चे कहीं जाते वक्त on the road or at the railway station, at the bus stop, you can see people moving without hands, है ना? किसी के हाथ कट गया है, किसी के पाँव कट गया है, सो और किसी के लेकिन इनका हाथ पाँव तो कट ही नहीं है ना, इट इज नॉट कट ऑफ, बट मैम कोई कोई तो नाटक करता है। तो ये जो है ये कटा हुआ हाथ या पाँव नहीं है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पैरालिसिस। जो पैरालाइज हो गया है, बिल्कुल वर्क ही नहीं हो रहा है। और जो फिरोज कंगा जो है उनका तो ब्रिटल बोन है, जो कि जन्म से ही उनका जो हड्डियां होती है ना, दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई ही कांट स्टैंड बाय हिमसेल्फ, ही हैज टू टेक समबडीज हेल्प, है ना? याद है ना इनके बारे में? बट दे आर ग्रेट पीपल, देयर माइंड्स आर वेरी शार्प, ऑल्दो दे आर फिजिकली वीक, फिजिकली उन लोग वीक हैं, बट यू कैन सी हियर देयर मेंटलिटी, देयर एक्टिवनेस, एंड दे आर वेरी मच इन एडवांस डूइंग समथिंग, है ना? देयर ब्रेन्स आर वेरी शार्प, दे कैन थिंक मच 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 more about the things they can do, and what they can we cannot, and what we do they cannot. So यहाँ पे इससे समझ में क्या आता है, जो वो लोग करते हैं, जो थिंक करते हैं, सर्च करते हैं और इन्वेंशन करते हैं, जो भी करते हैं वो हम नहीं कर सकते, और हम जो फिजिकली वर्क कर सकते वो उन लोग फिजिकली वर्क नहीं कर सकते। ओनली दे कैन डू द मेंटल वर्क, जो दिमाग में जो भी सोचना, जो भी प्लान करना है, ये सारी चीज़ उन लोग करते थे। सो बेटे कभी आप लोग गए हो जो आश्रम होता है, या तो यू कैन से जो कि बोलते हैं ना, जो जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, उनको एक आश्रम में रखा जाता है ना? हैव यू एवर विजिटेड दैट प्लेस? कभी आप विजिट किए हो? No, ma'am. नो नो। मैम। तो कभी चांसेस ओल्ड मिलेगा एज तो होम। सुना है। हाँ, ओल्ड एज होम भी बोलते हैं। ओल्ड एज में तो बेटा एक्चुअली ओनली ओल्ड पीपल आर देयर, हम बट ओल्ड ऑर्फनेज। एज ऑर्फनेज, वहाँ पे ऑर्फन बच्चे भी होंगे, एंड मतलब जिसके हाथ पाँव नहीं है उनके लिए भी एक आश्रम होता है। सो देयर यू कैन सी, जैसे कि आप लोग एक बिहार में मैं देखी थी बेटा, जो सीतामढ़ी के साइड में है, बिहार के उधर, तो हम गए थे देखने के लिए। सो देयर मतलब देखने से ना इतना दया आता है उनके ऊपर, कि सम ऑफ देम दे डोंट हैव स्टिल, मतलब हाथ कट गया है, क्रिपल हो गए हैं, उन लोग पाँव के सहारे नहीं लेकिन अपने मतलब हाथ के सहारे चलते हैं। जब आप लोग देखोगे ना तो ऐसा लगता है, पूरा आँसू आ जाता है उनके दुःख देखने से। सो वन्स आई हैड गॉन, आई थिंक इन 2016 में या 15 में मैं गई थी वहाँ पे देखने के लिए। लेकिन उन लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा से बातें करते हैं। You will not feel that they are struggling in their life. Such a nice people they are. So उन लोग ना एक दूसरे, जैसे कि जिसके हाथ नहीं है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, जैसे कि एक मतलब एक जन को मैंने देखा, उनके हाथ कट गया था, हाथ मतलब क्रिपल हो गया था, उनके हैंड बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो जिसके पाँव नहीं है, वो जिसके हाथ नहीं है उनको हेल्प कर रहे थे। पानी लाना, खाने के लिए, ये सारे एक दूसरे को हाँ, हेल्प कर रहे थे। जैसे कि उन लोग जिसके पाँव हैं कोई वो कोई मैम जो खाने। मैम जिसका मैम हुँ, हाथ कटा रहता है मैम वो काम काम भी करते हैं, आते भी हैं कुछ हाँ। बेचने। तो मैंने वहाँ क्या देखा कि जिसका पाँव है वो जाके खाना लेके आता है। वहाँ पे तो क्या है ना, एक एक साथ खाना बनती है ना? और सबको लेके आना पड़ता है। तो जिसका हाथ नहीं है तो वो कैसे लेके आएगा, है ना? तो ये जिसका पाँव है और हाथ नहीं है, तो मैम पाँव वो है, करते होंगे ना। एक-दूसरे को हेल्प करते हैं वहाँ पे। मतलब हेल्पिंग नेचर इज़ वेरी मच ओवर देयर। जिसके थोड़ा-सा भी ठीक-ठाक है, तो वो उतने में ही काम चला लेते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच इम्प्रेसिंग मी, कि हम क्या करते हैं, हमारे हाथ-पाँव सब कुछ ठीक-ठाक है,
पर क्या हम इनके जैसे हैप्पी रह सकते हैं लाइफ में? क्या वी कैन बी चेयरफुल लाइक दिस पीपल? मुझे वहाँ पे बहुत ये फ़ील हुआ था। जब आप देखोगे, कभी मौका मिलेगा तो प्लीज़, प्लीज़ गो एंड सी देम, है ना? ओल्ड एज में भी आप लोग को कभी भी ओल्ड एज जाने का मौका मिलेगा, प्लीज़ गो, डोंट लूज़ दैट चांस, ओके? यस ठीक है मैम। बच्चे? कभी मतलब मैं बोली हूँ उस चीज़ को कभी भी अपने लाइफ में पूरा करना, अंडरस्टूड? अभी नहीं, फिर भी कभी भी ये मेरी जो बात है मैम उसको ध्यान कभी भी रखना। जा सकते हैं। हाँ, कभी भी जाओ, पर यू गो एंड हम विज़िट देम। जाएंगे पर। हाँ, अभी ही जाओ मैं नहीं बोल रही हूँ, कभी भी लाइफ में यू कैन गो एंड विज़िट देम, यू विल बी ग्रेट, यू विल बी ब्लेस्ड, ठीक है? तो इनके बारे में अभी हम जो लेफ्ट ओवर है दैट वी विल स्टडी नाउ। So I will be sharing you the screen and we'll finish up today itself. If there will be time, then we'll have the discussion of question answer. Okay? Yes, बच्चे? Are you ready? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। तक हमने यस बच्चे, याद है कहाँ तक पढ़े थे? यस, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वी हैव कवर्ड दिस मच। 98 पेज इज ऑलरेडी डन आई थिंक। यस ना? मैम कुछ याद? 99 से पढ़ना। 99 आज पढ़ेंगे, है ना? देखो, एनीवन इज रेडी टू रीड और मैं पढ़ूं? क्या सोचते हो? कोई बच्चे पढ़ने चाहते हो? वॉलंटियर या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ते रहूंगी तो आप लोग के रीडिंग इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई गिव यू द चांस टू रीड। एनीवन इज रेडी? नो वन? यस बच्चे, पढ़ने चाहते हो? आर यू लिसनिंग? सुनाई दे रहा है बच्चे आप लोग को? मैम May I? हाँ, पढ़ो। आई टोल्ड हिम। Yes, ma'am. हम्म, I told him how he had been an inspiration beyond belief for me and surely for others. Did that thought help him? No, he said, and I thought how foolish I was to ask. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. ओके बेटा। तो आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेचेस फॉर मी and surely for others. So you see beta, यहाँ पे how the people, for them it is inspiration. Inspiration का मतलब समझते हो? Yes, inspiration, Yes, ma'am. इंस्पायर होना किसी चीज को इंस्पायर देखकर करना वहाँ, किसी को। हाँ, इंस्पायर होना किसी चीज को देखने के बाद या तो किसी के लाइफ को देखकर ऐसा कुछ सीख मिलता है, इंस्पायर होके हम भी वही चीज करने चाहते हैं, है ना? सो यू सी कि श्योरली फॉर अदर्स डिड द थॉट हेल्प हिम। क्या इसको इनको देखने के बाद जो पर्सन है, क्या इनको कुछ इंस्पिरेशन मिलता है? दैट पीपल, डिसेबल पीपल आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क, स्टिल दे हैव द होप एंड करेज टू लिव द लाइफ। क्या ये चीज इंस्पायर करता है लोगों को?
क्या पीपल इनको देखकर इंस्पायर हो जाते हैं? उनको देखकर कुछ सीख सकते हैं? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। सो कंगा बोलते हैं कि शायद नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्यों ये सारे क्वेश्चन उनको पूछ रहा हूँ? लाइक अ फुलिश पीपल, आई एम लाइक अ फुलिश पीपल, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन which is I'm not supposed to ask. When your body is a claustrophobic मतलब small, जो small room, and the walls are growing narrow day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. देखो, दे आर थिंकिंग हियर कि क्लास्ट्रोफोबिक रूम मतलब वी आर इन अ स्मॉल रूम, वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, एंड व्हेन पीपल दे सी अस, दे आर स्माइलिंग, they are just smiling, and they are not taking part. But only those people, those who are disabled, जो डिसेबल हैं उन्हीं लोग हमारे फीलिंग को समझ सकते हैं. दे कैन फील व्हाट वी आर फीलिंग. सो ये दोनों डिसेबल पर्सन दे आर थिंकिंग, मिस्टर जो कंगा है, जो फिरोज कंगा है, वो ये सारे चीज बोलते हैं, है ना. गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. तो ये कंगा बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग को कि लोग आपको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं. आप कम से कम कुछ काम तो नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, बट स्टिल यू आर अलाइव, यू आर ब्रीदिंग, सांसें ले पा रहे हो. वो ही ये लोगों को इंस्पिरेशन देता है. स्टिल यू आर अलाइव, इतना होने के बावजूद भी आप में करेज है, होप है जीने का, है ना. कोई कोई पीपल क्या होता है कि बेसिकली यू विल सी कि क्या है, किसी का हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, या तो मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, मोस्टली दे फील लाइक डूइंग देमसेल्व्स समथिंग हार्म टू देमसेल्व्स. दे वांट टू डू समथिंग so that they will harm their body and they will just finish, they will stop breathing, है ना. तो लेकिन यहाँ पे देखो एक इंस्पिरेशन है, कुछ सीख मिला है, कोई प्रभाव हो गए हैं, इनके लाइफ से प्रभावित हो गए हैं. सो यू सी पीपल दे आर थिंकिंग, और कंगा बोल रहे हैं कि यस, पीपल दे हैव द स्माइलिंग फेस बाय सीइंग यू स्टिल ब्रीदिंग. ओके, आगे पढ़ो बेटा. इज देयर एनी एडवाइस? Yes, ma'am. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? They should concentrate on what they are good at. I think things like the Disabled Olympics are a waste of time. I know what you mean. I remember the years I spent trying to play Spanish guitar, considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. The half hour was up. I think I've annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for stay. ओके. I will. Okay, ma'am. ठीक है. उस लाइन को पढ़ो बेटा, टिल फुल Stay. स्टॉप. Okay, ma'am. Stay. आई I वेट, waited. आई वेटेड. Yes, ma'am. पढ़ो. I waited. Stay. I waited. हैव सम Have टी. some. Oh, अच्छा ma'am पूरा. Have some tea. I can show you the garden. ओके वेट है. सो यू देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि आई नो व्हाट यू मीन. सो नाउ सॉरी, इनसे आगे से है ना. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मी help make life better. So he says that to Stephen Hawking that can you give some suggestion, can you say something, can you give advice to the people those who are disabled. क्या आप कभी उनको डिसेबल पर्सन को जब मिलते हो, तो क्या आप कभी उनको एडवाइस दिए हो बच्चे, कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए? यदि नहीं किए हो तो यू कैन गिव योर आइडिया,
यू कैन गिव देम एडवाइस, है ना? क्योंकि वो डिसेबल होने के बाद क्या होता है, उनको लगता है कि लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, है ना? लगता होगा ना, लोग उनको अवॉइड करते हैं, ऐसा फील होता होगा, इज़न्ट इट? तो जब भी आप लोग ऐसे लोग को देखोगे तो यू गो क्लोजर टू देम, यू टॉक टू देम, यू गिव देम सम एडवाइस, है ना? सो ये सॉरी, फिरोज खंगा भी बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग को, क्या आप कुछ एडवाइस दिए हो जो कि उनके लाइफ बेटर बन जाए? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो ये एडवाइस है, दे शुड कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना चाहिए, है ध्यान ना? लगा ध्यान देना चना, ये ध्यान देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, जो चीज में उन लोग अच्छे हैं उस चीज को और अच्छा करने के लिए। तो अभी आप लोग के पॉइंट में मैं आ रही हूँ बच्चे, कि आप ध्यान देना है जो चीज में आप अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ पढ़ कर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है ना? पढ़ने के बाद तो हम बन ही जाएंगे, लेकिन आपके विश क्या है, कॉन्सेंट्रेट उसमें ज्यादा देना है। यदि आपके एम जहाँ पे है और आप लोग कुछ और चीज में ध्यान दोगे, देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। जो भी करने चाहते हो, जो आपके मकसद है, जो भी आपके व्यू है, जो भी इच्छा है ना, जो इच्छा होता है कॉन्सेंट्रेट उसी पे करना है, अच्छी चीज पर। मैं बुरी चीज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ओके? डोंट मिसअंडरस्टैंड। तो अच्छी चीज में कॉन्सेंट्रेट करना है। यदि आप लोग अच्छे चीज में कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसी चीज में आपका ध्यान लगा रहेगा, देन श्योरली वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। समझ में आया बच्चे? एक चीज यस ऐसा मैम। होना चाहिए जिसमें बहुत ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। अभी आप लोग का ध्यान ज्यादातर स्टडी में ही होना है, और ये नहीं है कि स्टडी के बाद आपके एम जो है वो सक्सेसफुल यदि कोई कारण से नहीं हो पा रहा है, देन क्या होता है, आप लोग क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, है ना? ये सो नो डिप्रेशन हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, उसमें कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है। कुछ भी चीज़ करोगे, कॉन्सेंट्रेट करके करोगे, देन श्योरली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना? आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू सी, कि यदि आप डिसेबल हो तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप ओलंपिक गेम में भाग ले सकते हो। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब उन म्यू- बच, बच्चे म्यूट कर लो, किसी का छोटा भाई पढ़ रहे हैं कि बहन पढ़ रही है, सॉरी मैम, तो प्लीज। मैं म्यूट हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी ऑन नहीं करना बेटा, ओके? उन लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ओके? सो यू सी, यदि वो डिसेबल पर्सन हो के वो ओलंपिक गेम के बारे में सोचेंगे, देन दैट इज यूजलेस ना, एम आई राइट? फिजिकल एक्टिविटी के लिए उन लोग सोच ही नहीं सकते हैं, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। I know what you mean. I remembered the year I had spent trying to play a Spanish guitar, considerably larger than I was, and how gleefully I had unrestrained it one night. तो यहाँ पे बोलते हैं कि यस, स्पेनिश गिटार प्ले करने के लिए मैंने वन नाइट वहाँ पे अनस्ट्रेन्ड किया था उनको ग्लीफुल्ली, मतलब हैप्पीली। आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई विल प्ले दैट स्पेनिश गिटार। वो मेरा एक सपना था, और एक नाइट मैंने वो स्ट्रिंग वगैरह को सही किया, लेकिन यू नो दैट ही वॉज नॉट एबल टू प्ले बिकॉज ही वॉज अ डिसेबल पर्सन। वो नहीं कर डिसेबल सकता है, पर्सन। ओनली तो वो सोच सकता है केवल, लेकिन कर नहीं सकता, है ना? देन द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा चला गया। आई थिंक आई हैड अनोयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। सो यहाँ पे फिरोज कंगा बोलते हैं कि मैं
आधे मतलब हाफ एन आवर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है ये सारी चीज़ पूछने में, by asking these questions and just taking the advice and how the people they talk about you, what they talk and how they behave, all that I asked you. So now I will end up my conversation here, and sorry for I have taken your half an hour. So I said greening thank you. Now thank you for giving me time. Next. Oh, Stay. stay. I waited. Have some tea. I can show you the garden. So यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि अब हाफ एन आवर हो गया है, नाउ इट इज फॉर टाइम फॉर द टी, है ना. सो प्लीज हैव सम टी एंड आई विल शो यू द गार्डन. सी दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव, स्टिल ही हैज द होप, और विश्वास और बिलीव है, और ये सोचता है कि यस आई विल टेक यू टू द गार्डन टू शो यू, आपको गार्डन दिखाने के लिए ले जाऊंगा. आप अब यहाँ पे थोड़ी देर रुको, चाय पीकर हम गार्डन में देखने जाएंगे. आई विल टेक यू टू द गार्डन टू शो यू. ओके, नेक्स्ट. गार्डन वाज, पढ़ो बेटा. The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair, while I dozed to keep out of the way. We couldn't talk very much, but sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. See, now they have gone to the garden, and that garden is like a park, and they are thinking, they are not talking much, only they are thinking. See, here you can find them in silent mode, है ना. द लेटर्स वर अपियरिंग, डिसअपियरिंग एंड अपियरिंग, जो भी चाहते हैं वो अपियर होता है बटन दबाने से और डिसअपियर हो जाता है. एंड इन द ग्लेयर, जब आप सनलाइट में रहोगे देन यू कैन सी द ग्लेयर, है ना. जैसे मोबाइल को लेके जाओगे, आप धूप में खड़े होगे तो आपको दिखाई नहीं देता है ना बच्चे, जो क्या Yes, है ना ma'am. राइटिंग यस होता है मैम. वो सारे कुछ दिखाई नहीं देता है, बिकॉज ऑफ द ग्लेयर. सन का जो ग्लेयर होता है उसकी वजह से ये दिखाई नहीं देता है ना. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट सी. An hour later we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him, and embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for some many years. Sorry, for so many years. Alone, I knew that my journey was over for now. सो फिरोज कंगा और ये दोनों अभी गार्डन में घूम रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग. एंड आफ्टर दे मूव्ड अराउंड द गार्डन, एंड आफ्टर एंड इट वाज गोइंग टू बी डार्क, सो दे थॉट ऑफ गोइंग बैक टू देयर हाउसेस. तो क्या होता है कि यह कंगा बोलते हैं कि इवन आई कुड नॉट से एनीथिंग मच टू स्टीफन हॉकिंग. वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए, ना तो उनको हैंडशेक करके गुड बाय बोल पाए, कुछ भी नहीं कर पाए. एंड ही डिड नॉट, आई टच्ड हिज शोल्डर, ही कुड टच हिज शोल्डर एंड he can feel that presence of Stephen Hawking. But Stephen Hawking could not say anything, only he could wave his hand. उनका हाथ हिलाया, और वो watching him an embodiment of my bravest self, and he was just looking at him. He was not able to say, and the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over. तो ये जो फिरोज कंगा है वो बोलते हैं कि so many years
back, I was thinking of meeting Stephen Hawking one day. वो सोचते थे कि ये क्रिपल है ना? डिसेबल है स्टीफन हॉकिंग, और उनके बारे में फिरोज खंगा बहुत मतलब कई सारे बुक पढ़े थे, है ना? सो मेनी बुक्स ही हैड रेड अबाउट हिम, एंड ही कुड केम टू नो थ्रू दोज बुक्स बाय रीडिंग दैट ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, ही इज अ साइंटिस्ट, बट दिस पर्सन इज डिसेबल। डिसेबल होने के बावजूद भी ये साइंटिस्ट बना है, कैसे बना होगा? हाउ दैट पीपल विल बी, and such a great person, that is why he wanted to go to visit in Cambridge, है ना? And he talked to him, he could see, and as he had seen in the magazine, he is like that person. उनका जो थोड़ा सा जो मतलब शोल्डर थोड़ा सा बेंड है ना? वन साइड मतलब बेंड डाउन है, उसी तरह ही उनको ये में भी देखने को मिला है। मैगज़ीन में जैसा है वैसे ही रियलिटी में भी इनको देखने को मिला। सो नाउ फिरोज कंगा ही थिंक्स दैट कि नाउ आई हैव completed everything. Now I can end up my journey. I knew that my journey was over. वो बोलता है कि मेरा जर्नी जो था यहीं तक ख़त्म होता है, बिकॉज़ मेरा थिंकिंग जो था, जो मैं सोचता था, वो अभी completed हो गया है। It has been completed now. Now I don't have any eagerness or any longing, anything I don't want in my life. What I had and what I had thought, now I have achieved that. तो समझे बच्चे कि ये जो है, he had the dream, he had the you can say mm, he had the intention, और he had the craviness, उनको कुछ चीज़ों को जानने का, किसी के बारे में जब पढ़ते हो तो उनको देखने को मन करता है ना? यस, आप लोग को भी होता होगा? यस और नो बच्चे? यस मैम। होता यस है ना? मैम। हाँ, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली होगा। किसी के बारे में आप बुक में पढ़ोगे तो काश मैं उस इंसान को देखता, है ना? या तो मैम देखती। पहले बोर लगता है, फिर सुनते-सुनते इंटरेस्टेड लगता है। हाँ, उनके बारे में पढ़ोगे देन यू फ़ील लाइक मीटिंग दोज़ पीपल। जैसे कि कोई एक्ट्रेस भी आ जाते हैं ना, तो बच्चे आप लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं तो उसको फेस टू फेस देख दिया। देखने के बस मैंने सोच रहा था, हम तो टीवी में देखते हैं, बट उस दिन मैंने वहाँ गया था और उस एक्ट्रेस को या तो एक्टर को मैंने फेस टू फेस मिला था। सो क्या होता है? ग्लीफुली होता है ना? मतलब वेरी हैप्पी होते हो किसी को बताने के लिए। होते हो या नहीं होते बच्चे? यू फील हैप्पी टू टेल ना यस अदर्स? मैम। यस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ चीज़ को देखने के बाद उनके अंदर रहता नहीं है। दे हैव टू टेल, है ना? मैंने वहाँ गया था, ये ऐसा हुआ, वो हुआ, एंड आई सॉ दैट पर्सन व्हिच आई हैड रेड इन द बुक, और व्हिच पर्सन आई हैड सीन इन द मूवी और टीवी, और कोई ऐसे मतलब ऐसे बोलते हो कि रियलिटी में मैंने देखा, मैं कभी सोचा नहीं था। है ना? यू से दैट? तो ये है जो मिस्टर यहाँ फिरोज खंगा जो है, ये जो है, ये भी डिसेबल है। दैट इज वाई ही हैड द मच इंटरेस्टेड, he had much interest to visit this person, to feel it कि कैसा उनका फीलिंग होगा, हाउ दैट पर्सन इज, कि इतना मतलब डिसेबल होने के बावजूद भी वो पर्सन कैसा होगा, क्योंकि वो अच्छे चीज़ पढ़े थे बुक में, है ना? कि ही इज़ अ वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पहले इन द बिगिनिंग हमने पढ़े हैं ना, ही इज़ द पर्सन हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल के मिस्टर कंगा, जो फिरोज कंगा है, वो बताते हैं कि आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। वो बोलते हैं कि डिसेबल होने के बावजूद भी उनके जो चेहरे में चमक है, खुशियाँ हैं, वो सारे मेरे को अभी यहाँ देखने को मिल गया। नाउ आई हैव एंड अप माई जर्नी, आई हैव फिनिश्ड, मेरा सब कुछ पूरा हो गया, जो लॉन्गिंग था सब खत्म हो गया। नाउ आई एम, क्या बोलते हैं, पीसफुल इन माई माइंड, नाउ आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। तो आप बोलते कुछ चीज़ों को पाने के लिए
जब आप कोशिश करते हो और उस चीज़ मिल जाता है, उस चीज़ मिलने के बाद हाउ डू यू फील? यू फील एक्साइटेड, Completely. हैप्पी। पीस, और वो लगता है कि हाँ, मैं यहाँ तक कंप्लीटेड हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा फ़ील होता है ना? नाउ आई हैव गेन्ड एवरीथिंग। जो चीज़ आप लोग मकसद लेके, जो इंटेंशन लेके करते हो, कंसंट्रेशन करके करोगे कुछ भी चीज़, if you have the concentration on that particular thing, and when you get success in your life, then your feeling will be different. ऐसा लगेगा कि मैं तो स्काई में उड़ने वाला हूँ, बिने मतलब विदाउट एरोप्लेन यू कैन जस्ट यू विल बी फ्लाइंग, है ना? आपकी सोच ऐसा होता है कभी भी, मतलब कुछ चीज़ पा जाते हो जो जिस चीज़ का इंतज़ार होता है, देन यू डोंट फील हंग्री एंड थर्स्टी, सब कुछ भूख प्यास मिट जाता है, होता है, Yes, यस ma'am. मैम। हो जाता है ना? तो ये है आप लोग की इस लेसन से यू हैव लर्नड समथिंग। क्या आपने बस इस लेसन से ओनली लेसन को पढ़े हो, या कुछ भी आप क्या है उस पे इंस्पिरेशन आपको मिला है? मैं टुमारो आई एम गोइंग टू आस्क यू प्लीज रीड दिस चैप्टर वंस अगेन, है ना? रीड करोगे एंड आई विल गिव यू 5 to 10 मिनट्स, हाउ व्हाट यू हैव फेल्ट, जब ये चैप्टर पढ़े तो आपको क्या फीलिंग हुआ? आई विल आस्क यू दैट, हाउ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, क्या आप कुछ सीख पाए हो इनसे, ये दोनों से, या नहीं सीख पाए हो, या चैप्टर ही समझ में नहीं आया है? सो टुमारो आई विल बी आस्किंग यू दिस, सो बी रेडी विद दिस चैप्टर अगेन फॉर द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके बेटे, ज़्यादा Yes, टाइम नहीं ma'am. लेंगे। मैम कल फिर क्लास होगी? अयो मुझे नहीं पता बेटा, आई एम सॉरी बट मैम कल तो मैम बी रेडी। पीटीएम है मैम, कल तो मैम क्लास नहीं होगी। मुझे देखा मैम ने पता कहा नहीं तो। था। अच्छा बता दिए हैं आपको बेटे, मुझे यस नहीं मैम, पता देखा था। मैम बोल रही थी कल तुम्हारी क्लास नहीं होगी, कल पीटीएम Yes, है। ma'am. हम कोई बात ऑनलाइन नहीं नहीं कर सकते थे मैम, स्कूल में जाना है। बेटा, आई हैव नो आइडिया, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। आई एक्चुअली आई हैव नॉट गॉट द मैसेज ना, मैसेज आएगी तो मुझे पता चल जाएगा, बट टिल हम बोलते वी रहते हैं हैव, ट्वीट में भेज देंगे। तो क्लासेस स्कूल तो में तो नहीं आना ऑब्वियसली ना। वो तो रिपोर्ट कार्ड है ट्यूटोरियल पे। मुझे नहीं Oh. पता जान बेटा, ये क्या है। आपको ये सारे चीज आप लोग को ग्रुप में डाल देंगे, सो यू डोंट बी वरीड मच अबाउट मैम इट, डाल है दिया ना? था ग्रुप। ग्रुप में डालेंगे तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एंड ये कोरोना सीजन में ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, यू हैव टू बी रिलैक्स, मैम इस बार है कोई ना? फेल तो नहीं होगा? दैट यू नो दैट कि आप फेल होंगे या नहीं होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू बेटे। इफ यू हैव पेपर रिटन सही नहीं वेल, होंगे तो मैम फेल कैसे हो जाए? श्योरली, हाँ, पेपर अच्छा गया होगा तो श्योरली यू विल बी फास्ट, है ना? दिवाली से पहले मीठा खाने के लिए मिल जाएगा, लड्डू, है ना? यस। और फेल हो जाएंगे तो दिवाली से पहले ही, दिया जलाने से पहले ही डंडे पड़ेंगे, है ना? यस। यस मैम, दिवाली करते करते आंसू बहा बहा के करना हमारा पड़ेगा। पटाखा फूट जाएगा। So children, that will be told to you in the group, so you don't worry, okay? ओके मैम। So यदि क्लास होगा then we will discuss this tomorrow. Clear? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. तो हमें चैप्टर 8 also is over. Yes, ये चैप्टर पीछे छूट गया था ना बच्चे? I think open window already we have covered. Did you get the question answer बच्चे? I'm not remembering. I have to check my Google Classroom. Did you get? No, ma'am. आपने मैम कल क्वेश्चन तो भेज भेजे देना थे मैम, कुछ सैटरडे को, कुछ। हम सैटरडे को भेज Question? देना होमवर्क। हाँ हाँ। मैम अच्छा 31 अक्टूबर को आपने वो भेजा था। बच्चे सचिन, मैंने आपको कुछ पूछने चाह रही हूँ बेटा, यू हैव टू टेल मी, ओके? जो कि आपको मैं करेक्ट करके सेव करके जो वो क्वेश्चन आंसर भेजा था,